So guys, up till now we have discussed the impact of peasant revolt. Know an event that led to the peasant revolt and devastation and resentment among the masses is the Hundred Years' War, because England remained engaged with France from 1338 to 1453, and this Hundred Years' War period, you can understand it in the contemporary scenario. A land or a country which remains incessantly involved in war with the other country, its resources gets exhausted and its economy really shuts down, and the human development and human uh, development and human concerns are hardly the priority of the government at that time. So guys, you have to remember these three dates and what I have tried to dictate here. So guys, another event which is 1381 is the John Wycliffe's translation of Bible. Why this is an important event? Because uh, Bible was in Latin, and people were no longer able to understand it. When people were unable to understand the language and the medium of the instruction of the gospel at the time, clergy and the papal monopoly was at its apex. Why it was at its apex? Because Pope and the clergy used to interpret the verses of the Bible according to their own interpretation, or according uh, to their own taste, or for their own benefit. So whenever somebody goes to the church, he confessing there that I have committed a sin out of the seven deadly sins, or major or minor sin, and the pope or the clergy will read a verse from the Bible, but that yokel simple gentleman is unable to understand the language of the Bible. So the clergy or the pope interpret that verse that you have to pay 1 lakh, for example, you have to pay 20 pounds in order to seek pardon. So this led to the corruption in the church. When the church was hub of corruption and profligacy at the time, this Wycliffe man, who is called father of Reformation, came to the front and led his people. How he led his people? He translated Bible into English. No, every person can understand what actually Bible is. He really, he really obliged his people by translating the Bible in their mother tongue. Now they can understand, they can interpret the Bible, which almost seized the monopoly of the church. So guys, these are the events that led that always have a formative influence in the 14th century. So we have to remember these events in order to understand the Chaucer and his age. अब गाइज मैं इसको थोड़ा सा उर्दू में डिफाइन कर देता हूँ. गाइस, ब्लैक डेथ जो है, एक जैसे आज हमारे यहाँ पे पैंडेमिक फैली हुई है कोविड-19, इसी तरह एक 1348 और 1349 के बीच में एक वहाँ पे एक वहाँ बीमारी फैल गई. अब वो बीमारी ऐसी थी, वो मतलब चूहों से वो बीमारी फैली थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत पॉपुलेशन, लगभग 70% तक पॉपुलेशन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की मर गई थी. जब गाइस वहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई, वहाँ के लोग जब मर गए, आधे नहीं रहे बचे, तो उससे ये हुआ कि वहाँ पे लेबर जो है की डिमांड बढ़ गई और बंदे लेबर वाले कम थे. अब वो डिमांड बढ़ गई, कम थे. अब जो है वो गवर्नमेंट ने क्या काम किया
कि उन्होंने उन लोगों को जो है वो पे कम मतलब उनको कम कर दी और उन्होंने इक्वालिटी जो थी वो ख़त्म कर दी। अब एक इंसान अगर 20 घंटे काम करेगा तो उसको मान लो 100 रुपये या 50 रुपये आज के हिसाब से फॉर एग्जांपल दिए जाएंगे। तो इस चीज़ ने गाइज पीजेंट रिवॉल्ट के लिए लेड किया। पीजेंट रिवॉल्ट जो 1381 में हुई वो क्यों हुई? क्योंकि फ्रांस के साथ जंग में ही काफ़ी अरसे तक युद्ध में इन्वॉल्व रहा बरतानिया या आप इंग्लैंड जिसको कहते हो। तो गाइज उससे ये इम्पैक्ट हुआ कि जो पैसा था, जो पूरे रिसोर्सेज थे वो एग्जॉस्ट हो गए। अब उससे जो है अब वो पैसा भाई इन्वॉल्व करना है, जैसे आज भी हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो जी उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए लोगों पे। जब लोगों पे हैवी टैक्सेस लगा दिए तो गाइज उसमें ये प्रॉब्लम हुई कि आप लोग पे नहीं कर सकते थे। उन्होंने वहां पे उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। अब जॉन बॉल नाम का एक बंदा था, जैक्स्ट्रा नाम का एक बंदा था, इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने वहां पे रिवॉल्ट की। और ये रिवॉल्ट क्या थी गाइस? इस रिवॉल्ट में उन्होंने कहा व्हेन एडम इव एंड इव स्पेन हु वाज देन द जेंटलमैन। यानी इससे कहने से ये मतलब है कि भाई जब एडम और ईव जो कि हमारे फोर फादर हैं, जब उन्होंने भी अपने हाथों से काम किया तो फिर ये जो लोग आज हम पे यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, जो हमें मोनोपोलाइज कर रहे हैं, जो हमें हमारे जो राइट्स हैं उनको जो है वो कर्व कर रहे हैं, ये कौन होते हैं? तो यहाँ से गाइस जो है वो क्या हुआ कि एक उनमें जिसको हम बोलेंगे नाराजगी फैल गई और जिसकी वजह से पीसेंट रिवॉल्ट आई। और गाइस ये रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये आगे चल के जो है ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट यहीं से स्टार्ट होगी। फिर 100 ईयर्स वॉर, ये मैंने बता दिया आपको, ये वॉर जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1338 से 1453 तक चली है। तो गाइज आपको इसकी सिर्फ डेट याद रखनी है और किस किस के बीच में हुई है। आगे चल के इसमें 3 वॉर्स और आती हैं, वो हम वहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे अगले पीरियड में। इसमें बैटल ऑफ एग्नीकोर्ट आती है, बैटल ऑफ पोइटियर्स आती है, तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके बाद जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। ये गाइस एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि चर्च में करप्शन थी। करप्शन चर्च में कैसे थी? एक तो ये जो ब्लैक डेथ आई, वो जो क्लर्जी थे वो बहुत तेज तरार किस्म के लोग थे। वो कहते थे भाई आप लोगों के सिंस जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं, इसलिए ये ब्लैक डेथ आई है। अब आप लोग जो है वो यहाँ पे पोप को आके पैसे दो, तो ताकि वो आपके लिए जो है वो क्या करे कि गॉड से पार्डन जो है वो सीख करे, ताकि आपके सिंस जो है वो फॉरगिव या पार्डन किए जा सकें, तो ताकि आप बच जाओ। तो फिर दूसरी चीज ये थी कि मान लो एक इंसान, ये क्रिश्चियनिटी में ये आज भी है कि कन्फेशन करना होता है पोप के आगे जाके। फॉर एग्जांपल जब आप कोई सिन कर लेते हो तो उसके लिए ये है कि आप पोप के सामने जाके करोगे कि भाई कि मुझसे ये सीन हुआ है, मैं इसका जो है वो कन्फेस करता हूँ, मैं मानता हूँ इसको, तो मुझे जो है वो पार्डन किया जाए। तो उस वक्त ये था कि वो बंदा मान लो कुछ करने जाता था तो वो पोप वहां से बाइबल से कुछ पढ़ता था, कोई वर्स उठा के उसको, अब बाइबल लैटिन में थी, लैटिन इस बंदे को नहीं आती, तो वो क्या करता था कि बस उसी के सिलसिले में उधर चढ़ा देता था। और उसमें क्या होता था गाइस कि बहुत बुरी तरह से वो इंटरप्रेट करते थे, उनके ऊपर बेचारों को पैसे लेते रहते थे और चर्च में करप्शन थी। तो गाइस यहाँ तक ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हमने डिस्कस किए हैं दोनों एजिस के। तो इसलिए हमें ये करना है गाइज कि ये सारे इवेंट्स हमें याद रखने हैं। फिर इसके बाद गाइज मैं अगला जो लेक्चर आने वाला है पार्ट 2 इसका, उसमें चासर को डिस्कस करेंगे और बाकी राइटर्स को। फिर जो उसके आगे तीसरी इसकी लेक्चर सीरीज आने वाली है वो यूजीसी नेट सेट के लिए। वो एक ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं गाइज, ये आपको अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है कि आपको ये याद रखनी है हमेशा अपने साथ। नेट सेट में मुमकिन है पूछ लें क्वेश्चन, बट ये नहीं है, लेकिन ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट या स्कॉलर हो। और फिर आगे चल के हमारे पास आ गया गाइस क्या, जो थर्ड इवेंट, फिर आगे हम चल के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं चासर के, हम वो डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी उसी में से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस अपना टाइम देने के लिए। होप आपको ये मेरी एफर्ट अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी एफर्ट कैसी लगी। और मोर ओवर गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस पूरी देखे बिना आपको नहीं पता चलेगा क्या है क्या नहीं है गाइज, हम एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं। आप देख सकते हो, खुद आप कंटेंट चेक करो। आपको यहाँ से पढ़ने के बाद खाली आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने होते हैं। तो गाइज चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।